today we will be continuing with our salary chapter only. We were doing the rent-free accommodation, the perquisite value. We were discussing about the same. I'm sharing my screen with all of you. Let me share. Do let me know if it is visible to every one of you. Just give me a second. So we had completed this rent-free accommodation in our previous class. We have also covered the leave travel concession. Okay. Um, Now today we will be covering the loan amount. So sometimes what happens, sometimes we take loan from our employer. तो उसका tax treatment कैसे होता है? This is something which we are going to cover today. Okay. Interest on loan. Okay. So sometimes what happens, you receive some advance salary from your employer. Okay. So let's say you are an employee of this entity. Let's assume it is Setindiabiz only. Okay. And from this Setindiabiz, you are receiving the advance salary, or maybe not advance salary. I would say that you are able to receive, let's say, loan amount. कि सर मुझे 6 महीने का लोन दे दीजिए, ठीक है? Maybe for any purpose, let's say you have this, your house construction is going on. Maybe you want the money for the purpose of your education, does not matter. Okay. So suppose the loan is given by your employer to the employee. Okay. Now what happens? Obviously, it is your interest free loan. ठीक है, इस पे आपका इंटरेस्ट तो नहीं रिकवर कर रही है अगर आपकी एंटिटी, तो उस केस में व्हाट वी विल डू, दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू, राइट? मतलब अगर मैं मार्केट में पर्सनल लोन भी लेने जाऊं तो 15% का इंटरेस्ट आई हैव टू पे approximately, right? But when I am taking this money from my employer, then that is the benefit for me. Okay, then that is the benefit for me. So let's assume कि मेरा जो 15% का इंटरेस्ट मार्केट में मैं पे करता, वो मैं नहीं पे कर रहा हूँ, और क्योंकि वो मैं नहीं पे कर रहा हूँ तो मेरा तो बेनिफिट हो गया. अब वो बेनिफिट मेरा क्या है? परक्विजिट वैल्यू मेरा इसका कैलकुलेट होगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस कि उसका मेरा परक्विजिट कैलकुलेट होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. यस मैम. ठीक है, तो परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होगा? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. So for this, I need to calculate the taxable amount. So what would be my taxable amount? The taxable amount would be the loan amount, whatever the loan you have taken, multiply by SBI interest rate minus actual interest rate. What does that mean? SBI interest rate minus actual interest rate. कि SBI वाले जो चार्ज कर रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट, हम वो मान लेंगे कि वो ही आपका उतना इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, प्लस अगर आपसे कुछ रिकवर किया जा रहा है तो वो जो रिकवरी है उसको माइनस कर देंगे. Repeating the same in English one more time. So for the taxable amount, what we need to do, we will taxable amount equals to loan amount, whatever the loan you have taken, multiply by SBI interest rate. SBI interest rate, SBI का बेस बनाएंगे इंटरेस्ट रेट्स के पर्सपेक्टिव से, माइनस द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट. एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली समथिंग, सपोज whatever the amount you're recovering from your employee, then that is my actual interest rate. Okay, so this is going to be your taxable amount. Now let me tell you how we are going to calculate the same. देखो, SBI इंटरेस्ट रेट तो बहुत सारे होते हैं और बार बार बदलते रहते हैं. डू यू ऑल एग्री? यस मैम. तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं. ठीक है, मैं आपको अपना गूगल का एक पेज शेयर कर रही हूँ. प्लीज टेल मी इफ इट इज विजिबल टू एवरीवन ऑफ यू. यस मैम. अगर गूगल पे SBI परक्विजिट रेट लिखोगे तो आपका SBI की वेबसाइट पे एक पेज होता है इंटरेस्ट रेट्स परक्विजिट कैलकुलेशन का, और वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में हमेशा आ जाता है, लाइक अपडेट हो जाता है. ठीक है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड, लास्ट अपडेट लिखा है ना 2 अप्रैल. तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से इंटरेस्ट रेट निकालने हैं. अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेंगे कि सपोज करो इफ देयर इज एन एम्प्लॉय जिसने जो है होम लोन के पर्पज से एडवांस लिया, लोन लिया, तो उसका होम लोन के केस में जाएगा. किसी ने पर्सनल पर्पज से लिया तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट हम अप्लाई करेंगे. किसी ने एजुकेशनल लोन का लिया तो एजुकेशनल लोन का करेंगे. लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, मतलब कुछ सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन लिया तो उसका करेंगे, और ऑटो लोन से तो ऑटो लोन्स करेंगे.
तो होम लोन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपडेट हो चुका है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग परक्विजिट कैलकुलेशन, सो लेट्स सी, ये हमारा उन्होंने दे रखा है। नाउ ये जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ से डिराइव करते हैं कि मिनिमम, जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन है, आपने टर्म लोन लिया है उसका, तो 8.25 टू 9.20 ये आपका मिनिमम से मैक्सिमम आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर ओडी लिया है तो 8.45 टू 9.40, अगर टॉप अप लोन है तो 8.55 टू 11.05। सो दैट मीन्स हम ये एज्यूम करते हुए चलते हैं दैट दिस इज द लोन अमाउंट, दिस इज द लोन अमाउंट विच इज बेसिकली जिससे मेरा जो है परक्विजिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। जैसे मैं अगर आपको लास्ट ईयर का दिखाऊं, अभी ये वैसे अपडेट होगा क्योंकि अभी ईयर ही आया है ना, तो जस्ट उन्होंने अप्रोक्सीमेट डाल दिया, ये भी और अपडेट होगा, बट मैं आपको लास्ट ईयर का दिखा देती हूँ। जैसे किसी का सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है अगर, ठीक है, तो उसके केस में, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई, मैं नॉर्मल इसमें लेती हूँ, डेली लोन ट्रैवल प्लस, लेट्स से आपने लिया होम लोन, और सिबिल स्कोर के हिसाब से हम लोग फिर आपका होम लोन का रेट डिसाइड करते हैं कि इट शुड बी 9.35 और कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं। दिस पेज विल बी अपडेटेड वन मोर टाइम क्योंकि प्रॉपर अपडेट होता है ये। पर्सनल लोन के केस में अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो जैसे एज यू कैन सी कि अगर डिफेंस का कोई बंदा है, आर्मी पर्सनल है, तो उसको इतना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेते हैं। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे एप्लीकेट ऑफ अदर कंपनीज, तो वहां पे उनका इतना इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग पर्पस के हिसाब से वी डिराइव द इंटरेस्ट रेट, और ये हमेशा हमारा 1 अप्रैल को लिया जाता है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो एसबीआई इंटरेस्ट रेट लेना है, सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हुआ और मैंने ऑन 31 जनवरी 26 मैंने लोन लिया, ठीक है, इस केस में भी जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लेंगे वो मैं कौन सी डेट का लूंगी, 1 अप्रैल 25 का। मतलब जो ईयर की शुरुआत में, जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमारा जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, मुझे वही इंटरेस्ट रेट लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज योर लोन, interest on loan. Now let me tell you, when the loan amount is up to 20,000, then the interest benefit is not taxable. When the loan amount is up to 20,000, then interest benefit is not taxable. Okay. Also, if loan is taken for treatment of a specified disease, इस स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आपने लोन लिया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैंसर वगैरह के लिए लोन ले लिया, ठीक है, then interest benefit is not taxable. Then again, interest benefit is not taxable if loan, even if the loan amount is more than 20,000. Okay, even if the loan amount is more than 20,000. Is it clear to every one of you? So 20,000 तक अगर आप लोन ले रहे हो अपने एम्प्लॉयर से, तब तो मुझे ये कुछ ऐड नहीं करना। 20,000 तक तो एग्जेम्पशन करेंगे ना, थोड़ा बहुत तो अलाउ करेंगे भाई एम्प्लॉय ले पाए। बट आप बोलो कि 2 लाख ले लिया, तब इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? Yes, ma'am. अगर यहाँ पे आपने जैसे डिजीज का बात किया आपने, तो डिजीज के लिए भी क्या मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है? उसके ऊपर भी मतलब मैक्सिमम कोई भी अमाउंट हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है? 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। तो उसका कुछ लिमिट का कुछ ये नहीं है यहाँ पे?
उसका लिमिट का नहीं है. I'm giving all of you one question. Let's solve one question related to this perquisite valuation. Let me open my notes. Yes, let's solve one question. Loan is taken from employer INR 2 lakh rupees. Okay, on 1st May 2024. Okay, loan further taken of INR 3 lakh rupees on 17/7/24. Okay, repayment was done of INR 1 lakh rupees on 30th December 24. SBI interest rates is also given. On 1st April 24, it is given as 12%. 1st May 24, it is given as 13%. Or 1st April 25, it is given as 14%. These are the exemption hypothetical figures I'm taking. You need to compute perquisite value for financial year 24-25. Okay, this is your question. So basically, you are taking a loan from your employer of 2 lakh rupees. You have taken the loan on 1st May. Further taken the loan from your employer of 3 lakh rupees on 17th July. And then repayment was done of 1 lakh rupees on 30th December 2024. Okay, now. Yes, everyone. Have you tried solving this question? I request every one of you to please switch on your camera if possible. Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना. देखो इसको कैसे करना है पहले उससे समझते हैं. इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट होता है वो आपका बैलेंसिंग फिगर पे होता है, राइट? मतलब जो भी उस मंथ का बैलेंसिंग है. तो Yes. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. ठीक है, ध्यान से देखना. ओपनिंग, रिसीव्ड, पेमेंट और ये आ जाएगा क्लोज. देखो अप्रैल मंथ में तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं बिकॉज मेरा फर्स्ट अमाउंट आई हैव रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मई, राइट? सो ओपनिंग 0, रिसीव्ड 0, पेमेंट 0, सो क्लोजिंग विल ऑल्सो बी. सो ओपनिंग में मैं रिसीव्ड ऐड करूंगी, पेमेंट माइनस करूंगी, इट वुड बी क्लोजिंग. सो इट वुड बी 0. नाउ दिस क्लोजिंग विल बी कैरी फॉरवर्ड हियर. और मैंने मई में रिसीव करा कितना? 2 लाख रुपीज. द डेट डज नॉट मैटर टू मी. I'll just write down that this is the amount I have received. There is no repayment. So my closing is also 2 lakh. This 2 lakh will be my opening for the month of June. Next amount I have received in the month of July. Okay. So let me do received 0, payment 0. So it would be 2 lakh. Again, I will carry forward the same. And the next amount, as you can see, I have received 3 lakh rupees. Payment is 0. So my opening is 5 lakh. फिर डू यू एग्री अगस्त से लेकर नवंबर तक मेरा जो क्लोजिंग है वो 5 लाख ही रहेगा. कुछ हुआ ही नहीं. करेक्ट. फिर दिसंबर में मैंने रिपेमेंट करी है 1 लाख रुपीस की. सो दिसंबर का ओपनिंग था 5 लाख, रिसीव्ड इज 0, 1 लाख रुपीस इज द रिपेमेंट आई हैव मेड, 4 लाख रुपीस इज द रिपेमेंट. और नेक्स्ट टाइम तक 4 लाख ही रहेगा, मतलब मार्च तक. ठीक है. अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2 लाख का बैलेंस है, डू यू एग्री कि 2 महीने रहा है ना? 5 लाख का बैलेंस कितने महीने रहा?
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने रहा। और यस, और दिसंबर में काउंट होगा उसमें? क्या दिसंबर में हमने रीपेमेंट किया ना, तो दिसंबर इंक्लूड होगा या नहीं होगा उसमें? नहीं होगा इंक्लूड, क्योंकि दिसंबर का बैलेंस तो क्लोजिंग 4 लाख था। ओके, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीने मेरा 4 लाख रहा, राइट। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट रेट कौन सा लेना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या जिस डेट पे लोन मुझे रिसीव हुआ वो लेते हैं, या नेक्स्ट ईयर का लेते हैं, या शुरुआत की डेट का लेते हैं, लाइक फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डू यू ऑल एग्री? यस मैम। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट मेरा 12% आएगा, राइट। करेक्ट। ये तो हो गया मेरा बैलेंस, और इसको मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगी ताकि ऑन एन एवरेज मेरा अमाउंट निकल आए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12% इज द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। लेट्स सपोज 4% इज द अमाउंट विच आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। दैट मीन्स मार्केट में तो अगर वो लेगा पर्सन तो 12% पे करेगा, बट अगर मेरे पास से लेगा तो 4% ही दे रहा है मुझे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर एज 30,000। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? क्लियर? ओके, 4% में समझा नहीं लॉजिक मैम। यहाँ पे आपने बोला जे एक मिनट, 4% नहीं समझे, मैं उसको बता देती हूँ। 4% रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके ठीक, ये एम्प्लॉय डिसाइड करते हैं या कैसे डिसाइड होता है 4% या 5%? एम्प्लॉयर ही बताएगा कि कितना पे करना है आपको। ठीक है, और एम्प्लॉय सपोज करो, हाँ, सब कुछ कुछ भी एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा तो 0% माइनस करते, तो फिर 12% पे निकालते। ये तो मैंने एज्यूम करा है कि ये हमने रिकवर कर लिया एम्प्लॉय से, और इसलिए ठीक ये है। मेरा पर्सन है। वाइट इज माई पर्सन बिकॉज अगर ये पर्सन जाता मार्केट में तो 12% इंटरेस्ट पे करता, मेरे पास आया है, मेरे से ही ले रहा है, तो मैं उसको 4% पे दे रहा हूँ, तो 8% का बेनिफिट तो है, तो वो 8% का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज माई परक्विजिट वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर कोई, यस मैम, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी कुछ एम्प्लॉयर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब गुड इंटरेस्ट देना जरूरी है, अगर 2 लाख ये 20,000 से ऊपर है, अप्रोक्स 1 लाख है, अगर जहाँ पे आपने बताया जी 4% के हिसाब से लोन, हाँ लेट्स से आई हैव नॉट रिकवर्ड एनी अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 0% माइनस करते हैं। ठीक है। अगर मैं कुछ एम्प्लॉय से ले ही नहीं रहा हूँ, तो दैट मीन्स एम्प्लॉय को 12% का बेनिफिट है, तो फिर मैं 12% वाला मल्टीप्लाई करती हूँ। मुझे ठीक है। बेसिकली एम्प्लॉय का बेनिफिट निकालना है। इस केस में मैंने 4% लिया तो वो 8% का बेनिफिट था, अगर मैं कुछ भी नहीं ले रही तो 12% का बेनिफिट। ठीक है मैम। और इसका जो ईएमआई कैलकुलेशन होता है, जैसे कुछ मैंने पेरोल्स में देखा है, एम्प्लॉय 1 लाख का सैलरी लेता है और वो बोलता है जी मैं 12 महीने के लिए सैलरी ले रहा हूँ, ये 12 महीने में उसको रीपेमेंट करूंगा फॉर एग्जांपल, और उसमें सडनली उनके पास किसी, फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट में पकड़ लेता हूँ 2 लाख रुपीज से उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद उन्होंने बोला जी मैं उसको 1 साल में कंप्लीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख का मैंने ले लिया और इसमें मैंने 12 महीने का रिपेमेंट का ऑप्शन लिया, तो मेरा जो ईएमआई बन रहा है, मतलब क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ एम्प्लॉय से, तो 16,667 रुपीज करके मेरा पर मंथ का ये बन रहा है मेरा, करेक्ट। बट सडनली बीच में मेरे पास कहीं से पेमेंट आ गया, जो भी मैंने 1 लाख रीपेमेंट कर दिया मैंने मिडिल ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ अप्रैल में मैंने लिया था, जून में मैंने 1 लाख रीपेमेंट कर दिया, तो फिर जो रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि जब एट ए टाइम हम सैलरी बनाते हैं उस केस में स्टार्टिंग में वो फिक्स्ड होता है कि महीने का आपको इतना रीपेमेंट करना है आपको 16,000 करके, राइट। बट उससे ने किसी भी मंथ में आपके मई या जून में आके उन्होंने 1 लाख रीपेमेंट कर दिया, तो जिस महीने में पेमेंट कर दिया उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर नेक्स्ट मंथ का जो सैलरी बनेगा ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को डिवाइड हो जाएगा रिमेनिंग मंथ के हिसाब से, यही प्रोसेस होगा। करेक्ट, यस करेक्ट। ओके, ठीक है। हाँ, लाइक जैसे 2 लाख में से 1 लाख पे कर दिया और अभी 5 महीने बचे हुए हैं, तो 1 लाख जैसे, नहीं हाँ, मैम, फिर वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो क्योंकि 5 मंथ पे 16,667 रुपीज करके, तो उसने ऑलरेडी 5 मंथ दे दिया, तो वहाँ पे भी कुछ अमाउंट रिकवर हो गया, प्लस 1 लाख दे दिया उसने उस महीने में आके, तो उसका जो रिमेनिंग रहेगा उसके ऊपर ही। हाँ, 1 लाख थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर 5 महीने नहीं बचेंगे फिर, क्योंकि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो ऑलरेडी 1,17,000 हो रहा है, ओके, समझ गया मैं। तो इट कैन बी इधर से 50,000 या समथिंग। लेट्स से 9 मंथ्स बचे हैं, तो दैट मीन्स 50,000 रुपए मेरे ऑलरेडी पे हो चुके हैं, तो 1,50,000 बचा। 1,50,000 में मैंने 1 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया, अब 50,000 रुपए बचा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। श्योर।
which is 5555. ठीक है? Everyone else, do you all have any questions? मेरा पूरा लाइफ के लिए अभी आपको विजिबल है, ठीक है? मेरा पूरा लाइट सिस्टम क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आगे से अपना गिफ्ट वाला। ओके, गिफ्ट क्या होता है? इफ यू आर रिसीविंग द गिफ्ट इन कैश, then the same is taxable. Okay, if you're receiving the gift in cash, then the same is taxable. However, if you're receiving the gift in kind, जैसे आपको दिवाली पे जो गिफ्ट मिला एक्सेट्रा, तो वो जो गिफ्ट है अगर उसकी एफएमवी वैल्यू मतलब फेयर मार्केट वैल्यू अगर लेस देन 5000 रुपीज है पर एनम, तब तो नॉट टैक्सेबल। और अगर एफएमवी एक्सीड्स 5000 रुपीज पर एनम तो फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब है कि सपोज करो आपको डिनर सेट मिला जिसकी वैल्यू है 6000 रुपए की, ठीक है? डिनर सेट में जिसकी वैल्यू है 6000 रुपए की, ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 6000 इज टैक्सेबल। वही सपोज करो आपको कोई 4500 रुपीज का गिफ्ट मिला, लेट्स से आपको कोई वो ब्लूटूथ डिवाइस होता है, क्या होता है, अलेक्सा वगैरह, मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं, अलेक्सा बोलते हैं हमारे घर में तो, ठीक है, ठीक है। सो आपको ऐसा कुछ मिला तो ये पूरा आपका फुली एग्जेम्प्ट है, बट ये पूरे साल की वैल्यू है। अब इसमें वाउचर्स भी आ जाते हैं आपके, किसी किसी को कई बार एनिवर्सरी पे या वैसे आपको वाउचर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारे वाउचर्स वगैरह हमारे इंक्लूड करके अगर उसकी वैल्यू 5000 रुपीज से एक्सीड करती है देन द सेम इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। बट ये इसमें गिफ्ट वाउचर कैश के बदले में अगर मुझे और कुछ मिला है, फॉर एग्जांपल जैसे गिफ्ट वाले आपने बोला कैश वाला ट्रांजेक्शन है, जैसे मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था आपने जो प्रीवियस क्लास में, तो उसमें अगर कुछ आइटम्स मिल रहा है उसके उसमें तो टैक्सेबल ये इनकम नहीं होगा ना? वो नहीं, वो भी इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है और गिफ्ट तो इन यहाँ काइंड एम्प्लॉयर दे रहे हैं उस केस में एप्लीकेबल है, बट अदर कोई विदाउट एम्प्लॉयर दे रहे हैं आउटसाइड ऑफ एम्प्लॉयर, तो उस केस में तो कोई एप्लीकेबल नहीं है ना? चाहे कैश हो चाहे कुछ भी हो सकते हैं मैम, उस केस में कोई टैक्सेबल नहीं। ओके। मैरिज पे जो भी आपको गिफ्ट मिलता है अगर वो नॉर्मल रिलेटिव्स या बाकी फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं। नाउ बात करते हैं ईसॉप की। ईसॉप इज योर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। व्हाट इज माय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? कि एम्प्लॉयज को हम ऑफर करते हैं दैट यू कैन परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। Okay, we offer the employees that you can purchase shares of the company at concessional rates. So here in this case, we are offering to our employees to purchase shares of the company at concessional rates. Okay, इस केस में let's suppose Reliance Industries है। Reliance Industries की करंट मार्केट प्राइस कितनी है? Let's see, एक बार देखें। If anyone is aware, then they can share the same. It is somewhere around 1200 right now, right? Reliance Industries की जो मार्केट प्राइस है वो है 1200। MP stands for 1200। 1185 आ रही है, वैसे मैं 1200 ले रहा हूँ इसका, ठीक है? अब ये जो मार्केट प्राइस है, एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि देखो भले ही मेरी मार्केट प्राइस 1200 हो, बट आई एम ओके इफ यू आर बेसिकली purchasing these shares at the rate of, let's say issue price हम एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं लेट्स से 800 रुपए की, ठीक है? तो एम्प्लॉय को बेनिफिट है, डू यू एग्री? 400 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है इस केस में। यस मैम। तो हमें ईसॉप के केस में जब भी आपको ऐसे शेयर्स मिलते हैं आपको टैक्सेबल अमाउंट निकालना होता है। इस टैक्सेबल अंडर सैलरी ओनली, वो टैक्सेबल कैसे निकलेगा? एफएमवी ऑफ शेयर्स माइनस इशू प्राइस।
सो FMV इस केस में मेरा 1200 है, माइनस इशू प्राइस इज 800 एट द रेट ऑफ 400 पर शेयर। सपोज करो आपने 100 शेयर्स परचेज करे ऐसे, तो दैट मीन्स आपको 40,000 रुपीज का मेरा परक्विजिट वैल्यू ऐड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। यस मैम। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, this is related to your perquisite. Now let's talk about the medical insurance जो कंपनी आपकी कराती है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में ना आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो इन इंडिया हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है। लेट्स से योर ट्रीटमेंट इज इन इंडिया, तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर आपका ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल है, ये एम्प्लॉयर का खुद का ही है। जैसे टाटा मेमोरियल कैंसर करके कुछ है ना, यस मैम। तो टाटा के एम्प्लॉयज के लिए तो वो उनका खुद का हो गया एक तरीके से। एम्प्लॉयर का खुद का है क्या, या फिर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल? जैसे मैं बताती हूँ, ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे एक तो GTV हॉस्पिटल आता है दिल्ली में, और एक आता है एम्स। ये मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राइट। एम्प्लॉयर ओन में आ जाता है मेरा टाटा मेमोरियल कैंसर वाला जो है, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज में आ जाता है आपका गंगाराम, फोर्टिस। ये सब आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी ट्रीटमेंट इंडिया में हो रही है तो आपको ये चेक करना है वेदर योर ट्रीटमेंट इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, whether your treatment is in employer owned hospital or treatment in government recognized hospital. So if we are falling into these categories, then obviously, और अगर इसका खर्चा सारा का सारा एम्प्लॉयर ओन करता है, मतलब एम्प्लॉयर कहता है कि यार देखो मैं ही बियर करूंगा। जैसे कोविड के टाइम पे डू यू रिमेम्बर, एम्प्लॉयर ने, कुछ एम्प्लॉयर्स ने किया है खर्चा बियर एम्प्लॉयज का, तो उस केस में वो जो अमाउंट भले ही एम्प्लॉयर पे कर रहा हो वो मेरा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। और अगर इसके अलावा अगर आपका से छोटे मोटे क्लिनिक में हो रहा हो या कहीं भी हो रहा हो, ठीक है, अदरवाइज अगर आपका कहीं हो रहा है तो वो मेरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी माई फुल्ली टैक्सेबल। बेस एंड आर की फॉर्म क्या है? अंशु, Yes, ma'am. अंशु फॉर्म क्या है वो, सॉरी अंशु की फॉर्म, आर की फॉर्म क्या है? Research and Referral Institute. ओके, हाँ वो डिफेंस वालों का भी फिर अलाउड होता है ना, उनके भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया मेरा ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब सपोज करो एक केस ऐसा आता है, और सेकंड जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, राइट। जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका एम्प्लॉयर पे करता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। कि आपको भगवान ना करे बट ऐसी बीमारी हुई कि जिसका ट्रीटमेंट आपको बाहर कराना पड़ा, और एम्प्लॉयर इज बियरिंग योर एक्सपेंस। तो अब इस केस में देखो, जब कोई बंदा बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाता है ना, उसके पास 3 चीजें होती हैं, 3 बेनिफिट मिल सकते हैं उसको। एक तो मिलेगा बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आता है मेरा बेनिफिट ऑफ स्टे, वहां ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, और एक खर्चा होगा मेरा ट्रैवल का। डू यू ऑल एग्री? यस मैम।
तो ट्रीटमेंट और मतलब रहने का खर्चा आप बेसिकली ये आपका एग्जेम्प्ट है अप टू आरबीआई का लिमिट्स। मतलब आरबीआई ना हर साल लिमिट्स बताती है हमें, लेट्स से $50,000 यू कैन स्पेंड, तो या 1 लाख 2,50,000, ये तो कुछ लिमिट्स हैं आरबीआई की कि इतना पैसा आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो अगर आपका विद इन द लिमिट है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू आरबीआई लिमिट्स। ठीक है। ट्रैवल के लिए अगर देखा जाए, ठीक है, ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर अप टू 2 लाख रुपीज है तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीज है तो मेरी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। तो 2 लाख पर मंथ और इन ईयर? 2 लाख इज एनुअल है ये। एनुअल। तो दैट जो ऐसे एम्प्लॉयज जो बहुत मतलब लेट्स से जो डेजिग्नेशन पे हो, जैसे एडमिन के या उस पे, मेनली उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उनका बेनिफिट ऑफ ट्रैवल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदरवाइज सपोज कर कोई बंदा है, सीईओ ऑफ द कंपनी है, तो उसकी सैलरी तो 2 लाख रुपए पर मंथ ही होगी, राइट, या 3 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो ऐसे केस में जो सीईओ वगैरह है या जो बड़ी डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी से 7 लाख या 8 लाख रुपए भी हो, उनका जो भी ट्रैवल का खर्चा है वो आपका, जो अगर एम्प्लॉयर बॉन्ड करता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। अब जो ट्रीटमेंट है ना वो आप किस किस का करा सकते हो, लेट्स सी। ट्रीटमेंट आप करा सकते हो एक तो खुद का, सेल्फ मतलब एम्प्लॉय, फिर अपनी स्पाउस का भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर चिल्ड्रन का भी करा सकते हो, और अगर कोई आपका डिपेंडेंट रिलेटिव है, डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आता है, जैसे आपके मदर आ गई, फादर आ गए, ब्रदर सिस्टर, तो उनका भी करा सकते हो। ठीक है। तो ट्रीटमेंट आप इन लोगों का करा सकते हो। यहाँ पे मैम वो जो चिल्ड्रन बना कॉन्सेप्ट था इनकम टैक्स एक्ट में, जो एजुकेशन वाला जो 3 चाइल्ड होता है चिल्ड्रन होगा, तो उस केस में हाँ, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा अगर किसी के 4 चिल्ड्रन है? यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो 4 किसी भी चिल्ड्रन का होगा वो भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। नाउ स्टे के चक्कर में कर लेते हैं, बेनिफिट ऑफ स्टे। Exemption of stay and travel is allowed only for one patient and one attendant. मतलब पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट जा सकता है, ऐसे नहीं कि आप पूरे नेबर्स वेबर्स को उठा के ले जाओ। ठीक है। तो अगर आप पूरी दुनिया को साथ में लेके जा रहे हो तो हम तो सिर्फ आपको 2 लोगों तक का ही देंगे, मतलब पेशेंट का खुद का और अटेंडेंट का। उसके ऊपर अगर आप एक भी बंदे को लेके जा रहे हो उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एक पेशेंट है, उसके साथ आपके 2 अटेंडेंट गए, आपको लगा कि 2 लोगों की तो जरूरत थी। एम्प्लॉयर ने तीनों का बियर किया एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर 2 लोगों का ही मिलेगा, एक तो पेशेंट का और अटेंडेंट का। एक अटेंडेंट का मेरा परकेजिट मान लिया जाएगा। एग्जाम्पशन का कोई लिमिट है यहाँ पे भी? कोई लिमिट नहीं, एग्जेम्पशन का लिमिट है एज पर आरबीआई। ओके, आज पर आरबीआई जो भी मैक्सिमम करेंगे। ठीक। 50,000 1 लाख ये होता है वैसे।
डॉलर्स, ठीक है। डॉलर 50,000, डॉलर्स 1 लाख, तो 50,000 का मतलब कितना हो गया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40 लाख रुपीज, करेक्ट। और 1 लाख का आपका वही 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, 80 लाख रुपीज, ठीक है। ये हो गया मेरा मेडिकल फैसिलिटी वाला। डू यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मेडिकल फैसिलिटी? कोई क्वेश्चन नहीं है? अब आप लोगों को चाय पानी मिलती है, राइट, ऑफिस में, यस मैम, मिलता है ना? तो वो भी तो बेनिफिट है आपका। भले ही आपको चाय अच्छी ना लग रही हो, बट बेनिफिट तो है, हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, है ना? तो ये हमारी होती है लंच फैसिलिटी। अब इस लंच फैसिलिटी में ये आपकी, अगर आपको टी, कॉफी या ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा मिल रहा है इन ऑफिस, तो ये आपका नॉट टैक्सेबल, ये आपका टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सो इवन इफ इट इज बेनिफिट, इट इज नॉट टैक्सेबल, ओके। अगर आपको लंच मिल रहा है रिमोट एरिया में, बहुत ही दूर दराज इलाके में आपको लंच मिल रहा है, जैसे मुझे याद है, मैं टेक महिंद्रा जो एक कंपनी है उसमें एनएससीजेड में जाती थी, नोएडा एनएससीजेड में, वहां बाहर कुछ था ही नहीं उस मोमेंट पे, अब हो गया हो तो पता नहीं, 2011-12 की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैं वहां पे ऑडिट के लिए जाते थे, कुछ था ही नहीं वहां पे, तो कंपनी जो टेक महिंद्रा है वो खुद ही प्रोवाइड करती है लंच वगैरह। तो अगर आपको लंच रिमोट एरिया में मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हो सकते हैं जो असम साइड पे हो सकते हैं, या से दमन एंड दीव में हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका वो भी नॉट टैक्सेबल। अब मैं एक और एंटिटी में जाती हूँ, आई वर्क एज एन इंटरनल ऑडिटर इन दैट कंपनी। अब उस इंटरनल ऑडिट में ना, वो जो कंपनी है वो है ग्रेटर नोएडा पे, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में है वो कंपनी, और ऑल्दो रीचेबल है, बट वहां पे क्योंकि वो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के वर्कर्स को नॉर्मली लंच प्रोवाइड किया जाता है। आई होप यू ऑल आर अवेयर कि फैक्ट्री के वर्कर्स को नॉर्मली लंच प्रोवाइड किया जाता है, मोस्टली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि लंच आपका कंपनी की तरफ से ही होगा। सो उस केस में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50 पर मील। अगर 50 रुपए तक का कोई मील है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इफ लंच इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस प्रीमाइसेस। अगर लंच आपका ऑफिस प्रीमाइसेस में मिल रहा है तो 50 रुपए तक का अगर आपका मील है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और थ्रू पेड वाउचर। ठीक है। किसी ने सोडेक्सो कार्ड सुना है? सेट इंडिया बिज में है सोडेक्सो? शायद नहीं है। नहीं है, इससे पहले मिला है मुझे बहुत सारा। हाँ, तो सोडेक्सो क्या होता है? वो आपका मील वाउचर ही होता है बेसिकली, मतलब उसमें और भी हो जाता है वैसे, रिचार्ज वगैरह बाकी चीजों का भी, पेट्रोल वगैरह का भी, बट मोस्टली लोग सोडेक्सो यूज करते हैं मील वाउचर्स के लिए। तो वो सोडेक्सो आप यूज कर सकते हैं, और उससे आपको, वो क्या है, वो मेरा वाउचर ही है, वो कार्ड ही है, ठीक है, उसका आप ले सकते हैं। या आपको जो भी खाना मिलता है, जैसे अगर आप फैक्ट्री वगैरह में जाओगे विजिट के लिए, तो आपको दिखाई ही देगा कि लंच प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं टेक महिंद्रा में जाती थी, वहां लंच फ्री तो नहीं था, ठीक है, वहां पे वो लोग चार्ज करते थे, बट ऑब्वियसली एज ए ऑडिटर हम थोड़ी पे कर रहे हैं, कोई और पे करता था अकाउंट्स में। तो अब उस केस में वो जो लंच की थाली होती थी वो मिलती थी 40 रुपीज की, 40 रुपीज पर थाली का, एक तरीके से 40 रुपए की थाली अपने को मिलती थी, ठीक है। अब वो पेमेंट कौन कर रहा है? वो पेमेंट कोई और कर रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरा एम्प्लॉयर मुझे पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो सारा एग्जेम्प्ट था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। यस मैम। ठीक है। Now let's talk about use of movable asset. Okay? Use of movable asset. अभी आप लोग मोस्टली लैपटॉप पे काम करते हो या डेस्कटॉप पे?
बोथ। तो अब देखो, आपको कंप्यूटर मिला हुआ है, किसी को लैपटॉप मिला हुआ होगा, राइट? तो ये तो मैं अपने लिए ही दे रहा हूँ, भले ही मैंने आपको एज एन एम्प्लॉयर आई हैव प्रोवाइडेड यू दीज कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, और भले ही आप उसमें थोड़ी देर के लिए फेसबुक या कुछ भी चला लो, बट मेरा काम मेजरली तो आप मेरे लिए ही यूज कर रहे हो, राइट? किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो भी नहीं चला पाते, राइट? तो उस केस में ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कि भले ही आपको कंप्यूटर और लैपटॉप मिला हो और उसमें आपका भी बेनिफिट हो रहा हो, लेट्स से, बट स्टिल ये मेरा फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। अब लेट्स टॉक अबाउट आपको इसके अलावा और कोई असेट मिला, जैसे टीवी और एसी एक्सेट्रा, ठीक है? टीवी, एसी एक्सेट्रा, अब आप यूज कर पा रहे हो उसको, जैसे अब आपको चेक करना होगा कि वेदर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, डू यू रिमेम्बर रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमने किया था ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ कॉस्ट लेना है, सेम यहीं पे सेम ट्रीटमेंट होगी। सपोज करो टीवी है और आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ आपको टीवी भी दे दिया मैंने, तो आप यूज करो मेरे मूवेबल एसेट को, राइट? तो आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? 10% ऑफ कॉस्ट। समझ में आया? और अगर ये ही चीज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो in that case my taxable amount would be higher charges paid by employer. Is that clear to every one of you? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन में। यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लो, क्वेश्चन नहीं होगा आई कैन अंडरस्टैंड। ये मुझे एक चीज पूछना था, दिवाली पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जैसे कार गिफ्ट करते हैं मैम, हाँ तो उस केस में जो भी कार तो उन्होंने गिफ्ट कर दिया, तो उसने एम्प्लॉयर ने गिफ्ट किया है, तो उस केस में वो एक तरफ से अर्निंग में ही जाएगा ना, उसे टैक्सेबल ही होगा ना वो। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो गिफ्ट में आ गया ना जिसकी वैल्यू 5,000 से ऊपर है। हाँ करेक्ट। ये तो हो गया आपका यूज ऑफ मूवेबल असेट। नाउ लेट्स सपोज एक और सिनेरियो लेते हैं जहां पे आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मूवेबल असेट को। नाउ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है। कोविड के टाइम पे डू यू ऑल एग्री कि ऑफिसेस खाली हो गए थे, स्पेशली आईटी कंपनीज, है ना? अब ऑफिसेस के जो भी असेट थे ना, मेरा एक क्लाइंट था, उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया कि एक काम करो तुम ले लो, जैसे जो भी फर्नीचर है, किसी के पास टीवी था, कोई प्रोजेक्टर था, किसी के पास कॉफी मशीन थी, ऑफिस के पास मतलब ऑफिस में कॉफी मशीन वगैरह ये सब थी, तो ये सब जो है ट्रांसफर कर दिया गया एम्प्लॉयज को। ट्रांसफर का मतलब है कि अब जो ओनर होंगे वो कंपनी से हटके कौन हो जाएंगे? एम्प्लॉयज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूज का मतलब है कि असेट तो मेरा ही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही है, बट मैं आपको यूज करने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग यू यूज दिस मूवेबल असेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूज। When it comes to transfer, that I'm transferring this asset to you. Is that clear? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो अब इस केस में आपको देखना है कि क्या आपने ट्रांसफर करा। नंबर वन, whether you have transferred the computer or laptop। कि सपोज करो मैंने सुदीप को बोला कि एक काम करो, जो तुम लैपटॉप यूज कर रहे हो ना वो ही अपने पास ही रख लो, तुम्हारा ही हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो कंप्यूटर, लैपटॉप। फिर मुझे देखना है कि क्या कार मैं यूज कर रहा हूं या फिर एनी अदर असेट। ठीक है? कंप्यूटर, लैपटॉप, कार या फिर एनी अदर एसेट। तो अगर मैं कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में बात करूं तो मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट होगा
वो होगा WDV माइनस कंसिडरेशन। इनफैक्ट इन तीनों केस में मेरा टैक्सेबल अमाउंट यही होगा, विच इज माई WDV माइनस कंसिडरेशन। टैक्सेबल अमाउंट होगा तीनों के केस में WDV माइनस कंसिडरेशन। WDV स्टैंड्स फॉर रिटन डाउन वैल्यू। ओके, WDV का मतलब होता है मेरा रिटन डाउन वैल्यू। कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 50% ऑन WDV मेथड। इस केस में जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 20% कार के केस में ऑन WDV मेथड। और एनी अदर एसेट के केस में वो आपका डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑन SLM मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज योर वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टीयर ऑफ एन एसेट। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं अपने मोबाइल फोन की भी, ऑब्वियसली इसका वैल्यू कम हो गया, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको मैं बोलती हूँ डेप्रीसिएशन। नाउ ये जो डेप्रीसिएशन है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज करो 1 अप्रैल 2021 को आपने कंप्यूटर खरीदा और लेट्स से कंप्यूटर की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको और आपने लेट्स से ऑन 25 अप्रैल 2024 मतलब 24-25 में आपने ये प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया, ये कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया अपने एम्प्लॉय। अब 1 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर खरीदा था 1 लाख का, इसमें कितना डेप्रिसिएशन बोल रहा है? 50% का, राइट? तो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन as on 31st March 2021 which is at the rate of 50%। तो 50,000 रुपए मेरा मैं यहाँ पे माइनस कर दूं। नाउ मेरा WDV आएगा, सॉरी, as on 1st April 22। अगेन मैं लेस कर दूंगी डेप्रिसिएशन as on 31st March 23, वो भी होगा 50%। मतलब जो मेरा रिटन डाउन वैल्यू आई उसका मैं 50% लूंगी। तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया? 50,000 के बाद मेरा आ गया 25,000 रुपए, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो WDV आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 23 का और वो हो गया 25,000 रुपए। Then I need to reduce depreciation as on 31st March 24, वो भी एट द रेट ऑफ 50%। तो वो हो गया मेरा 12,500, मैंने माइनस करा 12,500 आ गया। दिस इज माई WDV 1 अप्रैल 24 का। मैंने कब बेचा ये ट्रांसफर करा? 25 अप्रैल 24 को 12,500, दिस इज माई WDV। और इफ आई एम रिकवरिंग सम अमाउंट फ्रॉम माई एम्प्लॉय, लेट्स से मैंने 2,000 रुपए रिकवर करे, ये मैंने 2,000 रुपए रिकवर करे, तो क्योंकि रिकवर करे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं हुआ, राइट? तो 12,500 में से 2,000 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 10,500। सो एज यू कैन सी मेरा जो परक्विजिट वैल्यू निकलेगा वो इस केस में कितना निकलेगा? 10,500। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। WDV समझ में आया कि सबको? Yes, ma'am. Okay, perfect. So now what I'm doing,
I am winding up the session for now. Okay. In our next class, what we are going to do? Okay. In our next class, number 1, we will be solving few questions related to this transfer of movable asset only. Then there are few more items of perquisite जहाँ पे आपका होटल बेनिफिट्स, कार फैसिलिटी ये सब पेंडिंग है. ग्रेचुटी वगैरह अभी हमने नहीं करा है ना, या कर लिया? ग्रेचुटी नहीं हुआ है मैम. ओके, ग्रेचुटी नहीं हुआ है तो हम वो सब करके फिर हम अपना प्रॉपर सेशन हमारे सैलरी का हो जाएगा. So I think maximum 2 more sessions and then we will complete our salary chapter. Okay? Is it clear to everyone of you? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए. कैपिटल गेन में आप लोगों को बहुत मजा आएगा. वाई? बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं कैपिटल गेन में और मैंने बहुत मेहनत भी करी है उसकी स्लाइड्स वगैरह बनाने में. तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय द कैपिटल गेन वाले सेशंस. हाउस प्रॉपर्टी ये सब छोटे छोटे सेशंस है, हार्डली 1 या 2 दिन लगते हैं उसमें. पर हम सीधा कैपिटल गेन पे आएंगे और फ्यूचर ऑप्शन का कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल गेन का कैसे ट्रीटमेंट होता है, शेयर एंड सिक्योरिटीज का कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम अपने सेशंस में समझेंगे. ठीक है, चलिए. This is all for today. Thank you everyone. Let's meet in our next session. I hope you have enjoyed today's session. I just wish you guys to be quite interactive during the sessions if possible.